I welcome all the viewers to the series of Love Yourself under the episode of Pyare Bachcho, and we will have multiple episodes under this. And I have two very esteemed speakers in this particular series, and you must have seen the professionals who are working because of two reasons. One is purpose, second is passion. I have two guests who are filled with both the things, passion and purpose. And today, if you'll see, the child health in India is becoming very important. The population, almost the one third of population in India is falling between 0 to 18 years of age, which is mainly for the children and adolescent. And to talk about the subject matter, we have esteemed guests like Dr. Bakul Jayant Parekh, who is called as a doctor's doctor because he has contributed to multiple health policies in this particular domain. Along with him, we have Dr. Anuj Rastogi sir. He is a famous neonatal pediatrician from UP, and he can be called as a parent's advocate when it comes to child health. So both of them have a different vision, different perspective about the subject matter, and I hope you will have multiple insights and learning out of this. Thank you very much. Please continue watching this series. We will keep on bringing the different subject under this particular Pyare Bachcho series. Hello, Dr. Anuj. Hello, sir. How are you? I'm fine, sir. How do you do, sir? Absolutely fine. I was wanting to discuss something about some common problem Yes, sir. which yes, we sir. face in our pediatric clinic. Yes, sir. Yes. Out of 100%, I must be seeing around 7 patients of constipation. Mm-hmm. I was surprised why so much of constipation is seen in pediatric patients. Sir, it was not earlier. Few years ago, around say around 12, 13 years ago, I was attending an international conference, and there was a hall was dedicated to constipation. Oh, It was in USA, and I was surprised why they are talking so much about constipation. तो एक प्रोडक्ट आता मीरालेक्स मीरालेक्स आई केम टू नो अबाउट मीरालेक्स देयर ओनली it is a polyethylene glycol and it is written in our book, but we never noticed because we never required it. So I was shocked why they are discussing so much on constipation. Is that so much big disease? इंटरनेशनल डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ और कॉन्स्टिपेशन पे एक पूरा जो रूम पूरा उसके लिए ही दे दिया, पूरा दिन के सेशन कॉन्स्टिपेशन पे. देन आई सरप्राइज्ड, बट मुझे ये लगा कि शायद ये कॉन्स्टिपेशन इसका मतलब अब और जगह भी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसा चेंज हुआ है जो अब और जगह होने लगेगा. क्योंकि हम तो छोटे थे तभी समझो एक आध 2 दिन मोशन पास नहीं किया तो माँ बाप ध्यान भी नहीं देते थे. पर आजकल पेरेंट्स बहुत ही कंसर्न हो गए कि अरे मेरे बच्चे ने 5 दिन संडास नहीं किया, 6 दिन संडास नहीं किया तो बहुत स्ट्रेन करता है, या तो दे हैव ए बिलीव कि एक दिन में एक बार तो करना ही चाहिए. सो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्स्टिपेशन? इज इट कि भाई एक दिन नहीं किया तो कॉन्स्टिपेशन बोला जाए, या आप क्या बताना चाहोगे? सर एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन हर एज पे डिफरेंटली डिफाइंड है. अगर जैसे एक न्यू बॉर्न है उसके लिए 7 दिन में 1 पॉटी और 1 दिन में 7 पॉटी तक का जो वेरिएशन है नॉर्मल है. अगर वो बच्चा कंफर्टेबली स्टूल पास कर रहा है, मतलब ही इज़ नॉट हैविंग सीवियर पेन, देयर इज़ नो ब्लड इन स्टूल, देन इट मे बी नॉर्मल. अगर सॉफ्ट स्टूल 7 दिन के बाद भी पास कर रहा है तो न्यू बॉर्न के लिए और फर्स्ट 3 मंथ्स वो नॉर्मल है. उसके बाद अगर बच्चे को हम एक ब्रिस्टल चार्ट यूज़ करते हैं, जैसे हम पहले जब कॉन्स्टिपेशन की बात करते थे तो ये सोचते थे जिसने 2-3 दिन 4 दिन स्टूल नहीं करा वो कॉन्स्टिपेटेड है. बट अब ग्रेजुअली जिस तरह से कॉन्स्टिपेशन की अवेयरनेस बढ़ रही है, उसका प्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, तो इवन जो बच्चे बॉल करके स्टूल भी पास कर रहे हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन माना जाता है. और ब्रिस्टल चार्ट कोई भी देख सकता है, उसमें 1 to 7 कैटेगरी हैं स्टूल की, एंड 1 to 3 इज कॉन्स्टिपेटेड. corn like small pieces of stool, or even the few of them they present like they are passing stool every time whenever they are feeding. और दूसरे को लगता है इसको डायरिया है, बट वो डायरिया नहीं होता, वो कॉन्स्टिपेशन का प्रेजेंटेशन. यानी बोलने का मतलब कि सूखा स्टूल है या हार्ड स्टूल है, या तो उसको स्ट्रेन करने में डिफिकल्टी जा रही है, या तो पास करते टाइम रोकता है या ब्लड जाता है, तो अपन कॉन्स्टिपेशन बोले. हाँ, बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है. रोज एक बार करना ही चाहिए एटलीस्ट मिनिमम. ऐसा कुछ है कि हफ्ते में 1-2-3 बार करें तो भी इट्स ओके इफ इट इज इन नॉर्मल कंसिस्टेंसी.
एक्चुअली पेरेंट्स का इस तरफ फोकस ज़्यादा नहीं है, बट हाँ अगर बच्चे को स्टूल पास करने में हार्ड स्टूल हो रहा है, क्योंकि कहीं इसकी फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि 3 दिन में स्टूल नहीं करा तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, बट अगर हार्ड स्टूल है, डिस्कम्फर्ट के साथ हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन है। और जैसे आपने बताया कि न्यूबॉर्न बच्चे में तो कभी एक दिन में 10 करे या 10 दिन में एक करे, लेकिन नॉर्मल कंसिस्टेंसी तो हमें डरना नहीं है। आपको क्या लगता है सर कि अभी जो कॉन्स्टिपेशन के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ है कि जिसकी वजह से आजकल पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न भी है और दे ऑलवेज से कि मेरा बच्चा संडास पास नहीं किया तो इरिटेबल रहता है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, बच्चा तो बहुत लेट इरिटेबल होता है, पेरेंट्स उससे पहले इरिटेबल होने लगते हैं, इससे स्टूल नहीं हुआ, और वो कुछ कुछ होम रेमेडीज करते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, एंड जब वो बच्चा काफ़ी सिक हो जाता है या वोमिटिंग करने लगता है, तब वो डॉक्टरी क्लिनिक पे प्रेजेंट करते हैं। मुझे जो लगता है, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि ऐसा क्या है, क्योंकि एक एज पे तो कॉन्स्टिपेशन है नहीं, हमने सोचा कि भाई ऑल पर्पस फ्लोर खाने की वजह से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेस देन 6 मंथ पे भी कॉन्स्टिपेशन मिलने लगा। कॉन्स्टिपेशन हम जैसे, तो आप तो सर डॉक्टर ही हैं, फंक्शनल और ऑर्गेनिक। फंक्शनल का मतलब है जिसके पीछे कोई एक डेफिनेट कॉज नहीं है, और ऑर्गेनिक जब आपको कोई बीमारी की वजह से कॉन्स्टिपेशन। कॉमन जो है फंक्शनल है, तो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन इवन लेस देन 6 मंथ पे भी मिल रहा है, जबकि उसकी अभी तो कोई गेहूं की चीज़ या कुछ इस टाइप का शुरू भी नहीं हुआ है। तो ऐसी कोई खाने पीने के अंदर ऐसी कोई वजह है कि जो खाने या पीने से ज़्यादा चांस है कॉन्स्टिपेशन होने का या कम चांस है? एक्चुअली खाना पीना भी इम्पॉर्टेंट है, बट ओवरऑल लाइफ चेंज हो गई है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैं सोचता हूँ, डाइपर से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे डाइपर के साथ एक तो बच्चे को एक कंफर्ट मिल जाता है कि वो उसने स्टूल कर दिया, थोड़ी देर बाद वो उसके लिए एडजस्ट भी हो जाता है। पहले नैपीज पहना करते थे बच्चे, तो नैपी से ब्लो आउट हो जाता था या नैपी वेट हो गई तो माँ को पता चल जाता, तो बहुत देर बच्चा बैठ नहीं रहता था। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। मुझे जो लगता है, अगर हम 6 मंथ से ऊपर की बात करें तो अब जो ऑल पर्पस फ्लोर या वाइट फ्लोर के ऊपर बहुत निर्भरता हो गई है। पहले भी हम मठरी वगैरह खाते थे, बट अब ज़्यादा यूज़ होने लगा है सब, तो वो भी क्योंकि जितना वाइट फ्लोर है, ऑल पर्पस फ्लोर है, वो हाथ पे चिपकता है। अगर आप देखिए गेहूं के रूप में दलिया या वाइट फ्लोर, दलिए को आप अपने हाथ पे मारिए नहीं चिपकेगा, वो छूट के गिर जाएगा, और जैसे ही वो बारीक होता जाएगा तो वो चिपकने लगेगा। बराबर है। जैसे इसी फ्लोर से आप लही भी बनाते थे, जब हम छोटे थे तो पतंगे चिपकाने के लिए लही बनाया करते थे, तो दैट इज़ ग्लूटेन, एंड वो ग्लू करता है, एंड वो हाथों पे चिपका रह जाता है। यानी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से फाइबर कम हो गया, ऐसा कुछ? जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अब लाइफ का शेड्यूल चेंज हो गया। पहले जैसे हम छोटे थे तो 2 बार चित्रहार आता था, 1 बार पिक्चर आती थी, फिर 2 पिक्चर आने लगी हफ्ते में, और उनके फिक्स टाइम होते थे, 6 बजे से 9 बजे तक आती थी, या 9 बजे तक बाई एंड लार्ज सब सो जाते थे। अब कोई ना सोने का टाइम है ना जागने का टाइम है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के साथ डिस्को शुरू हो गए हैं, तो वो भी एक, क्योंकि एक रूटीन नहीं है, हमारी बॉडी एक रिदम के अकॉर्डिंग काम करती है, सर्कैडियन रिदम की। जैसे सन निकलता है वैसे ही हमारा सोचने का प्रोसेस शुरू होता है। मॉर्निंग हो गई, फ्रेश डे लगता है, शाम को अंधेरा हो गया तो हमें सोना है, थक गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्रेन में चलने लगता है। बट अब ये दिन रात का जो डिफरेंस है, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ़र्क उसने डाला, इंटरनेट ने डाला, एंड थर्ड जो वीडियो गेम शुरू हो गए हैं, वो वीडियो गेम में बच्चे एंगेज रहते हैं और बहुत फास्ट चलता है वो, बहुत फास्ट। वो उसको कई बार ना अर्ज भी होती तो वो उसे होल्ड कर लेता है, और जब बिल्कुल नहीं रह जाता तो फास्ट जाएगा और वो बैठता नहीं है वहाँ। उसे लगता है कि वो मारियो को उछालना है, अभी वो फ़ौरन वहाँ से निकल के आ जाता है। अच्छा, इनिशियली जब बच्चा छोटा होता है तो माँ देख रही होती है कि उसको क्या स्टूल कैसा हुआ। अच्छा, माँ को ये भी नहीं पता होता कि कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, भाई उसको ही होता है स्टूल हो गया, माँ भी खुश बच्चा भी खुश। देर आफ्टर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो टॉयलेट में गया और फ्लश की आवाज़ आई, माँ भी खुश, फिर बच्चा भी खुश अगेन। ये पता नहीं चलता और अनरिकग्नाइज रह जाता है। आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे लोग, पहला हम जब भी छोटे थे तो माँ बाप को हमको बुलाना पड़ता है, भाई घर पे आ, पढ़ कुछ, आखा दिन बाहर ही खेलते रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी अच्छी थी, गेम्स अच्छी थी, लेकिन अभी आजकल जैसा आपने बताया मोबाइल, टीवी, वीडियो, उसी पे ज़्यादा टाइम निकाला जा रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई। दूसरा मैंने एक नोटिस किया है, अर्ली मॉर्निंग स्कूल्स हो गई है, रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी आधा घंटे में फटाफट रेडी होकर जाना, तो संडास में बैठने का टाइम ही नहीं है। और स्कूल में जाने के बाद भी जब भी संडास जाने की इच्छा भी होती होगी तो रोक के रखते हैं कि कहाँ जाए,
टॉयलेट में टाइम नहीं मिलता है, तो दैट मे बी वन ऑफ द रीज़न। नहीं, बहुत सारी बार ना देखो, मदर का जो पहले भी होता होगा फोकस, मदर का फोकस खिलाने पे ज़्यादा होता है। उसके लिए एक मेन एजेंडा रहता है बच्चे को उठा के ब्रेकफास्ट जरूर कराना है। पता नहीं ब्रेकफास्ट नहीं करा तो क्या हो रहा है। वो अगर इन दोनों चीज़ों में से चूज़ करना है कि वो स्टूल टाइम पे सुबह जाना है, तो वो ये सोचती है तो स्टूल तो आगे कर लेगा, और उसको ब्रेकफास्ट जरूर कराती है वो, बराबर। या दूध जरूर पिलाती है। तो वो वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और बच्चे, कोई भी छोटा बच्चा इतनी सुबह सुबह अर्ली जाने के लिए रेडी भी नहीं होता, वो बार बार कहता है उठ रहा हूँ। अगर वो माँ ने टारगेट लिया है कि मुझे इसके स्कूल जाने से 1 घंटा पहले उठाना है या आधा घंटा पहले उठाना है, वो अपने आप ही 10-15 मिनट तो उसको उठाने में ही वेस्ट हो जाते हैं। वो कह रहा है उठ रहा हूँ, फिर चादर डाल लेगा। तो ये एक सिस्टम बन गया। पहले 9-10 बजे के स्कूल हुआ करते थे, वो ज़्यादा कंफर्टेबल था। अब अर्ली मॉर्निंग स्कूल पता नहीं कैसे चेंज आया सोसाइटी में, उससे भी काफ़ी डिस्टर्बेंस है। आई डू एग्री। दूसरा एक मैंने नोटिस किया है, जब भी मेरे पास जो कोई पेशेंट आता है कॉन्स्टिपेशन लेके, तो मैं पूछता हूँ कि उसका डाइट क्या है। तो ज़्यादा करके अभी न्यूक्लियर फैमिली है, माँ बाप काम पे चले जाते हैं, टाइम नहीं है, और बच्चे भी फंसी है थोड़े, तो दूध पिला देते हैं। दूध पे चलो 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध पी लिया, पेट भर गया, तो बाकी चीज़ों पे जैसा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बाकी चीज़ें जो खानी चाहिए वो आजकल नहीं। और दूसरा जंक फूड पे आजकल बच्चे की ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, तो शायद उसके वजह से भी होता होगा। हाँ, वो भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट रीज़न है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, अगर आप सब चीज़ें देखो, तो एक तो रॉन्ग टाइम ऑफ वीनिंग प्रॉपर नहीं करना है। और पहले उसको, जबकि अगर आप देखो टेक्निकली, अगर आप एक 1 साल के बच्चे को पिक करो और एक 50 ईयर ओल्ड आदमी को पिक करो, तो सबसे बढ़िया खाना खाने का तरीका 1 साल के बच्चे का होता है, जो माँ नहीं समझती, दादी नहीं समझती। उसको पता है मुझे कब खाना है, कितना खाना है, कब मुझे भूख लगी है। ही नोज इट। मैंने अभी अपने क्लिनिक पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। पेरेंट्स आते हैं रोज कि खाता नहीं है, तो मैं अपने क्लिनिक में पीछे बिस्किट रखता हूँ, और मैं बिस्किट का पैकेट खोल के माँ और फादर को कहता हूँ तुम खाओ, बच्चे से नहीं पूछना, और जल्दी जल्दी खाओ। तो वो दूसरा बिस्किट भी खत्म नहीं करते। बच्चा जो है उन्हें देख के ड्रूल करने लगता है और बिस्कुट पे हाथ मार के खाने लगता है। सो बेसिकली दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो उन्हें लगता है कि हमारी मर्जी से खाए, और वो दूसरे के बच्चे को देख के माँ अपने बच्चे को कमज़ोर समझ के बहुत फोर्स फीडिंग करती है। और जब वो फोर्स फीडिंग में फेल हो जाती है, तो फिर अल्टीमेटली उसे लगता है चल कुछ नहीं खा रहा, तो दूध तो पी लिया इसने। तो ये उसका माइंड सेट हो जाता है। मैं बाकायदा ट्रेनिंग देता हूँ वीनिंग की। मेरे पास डाइटिशियन है, मैंने उसे ट्रेन कर रखा है। हमारी बुक भी है, हाउ टू स्टार्ट वीनिंग, एंड आई प्रेफर बेबी लेट वीनिंग, मतलब बच्चा खुद खाए, ये मेरा एक टारगेट है। और ये हम समझाते भी हैं कि आप मत खिलाइए, एक स्ट्रगल में कन्वर्ट करिए। तो खुद ही खाना चाहता है, आप क्यों बीच में आ रही है। अब उसका दूसरी, जब छोटा बच्चा होता तो उसका माँ का दिमाग ऐसे चलता है कि उसने कुछ खिलाया, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था और ये वेस्ट हो गया, उल्टी कर दी इसने, अब इसके मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो वो ये जो छोटी छोटी चीज़ें देखती है, वो ये नहीं समझती, ये चीज़ प्रोसेस, हर चीज़ एक प्रोसेस है। मैं एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ तब मेरी फिटनेस आती है। वो ऐसे नहीं आती कि मैं एक दिन जाके मैंने एक्सरसाइज कर ली अगले दिन मेरी फिटनेस बन गई। इट टेक्स टाइम, पढ़ाई, सब चीज़ प्रैक्टिस है। अब माँ ये समझती नहीं कि अगर आज इसे उल्टी हो गई तो जरूर थोड़ी कल भी उल्टी होगी इसको। वो 10-15 डेज में अपने आप वो सब एडजस्ट करना सीख जाता है। जो चीज़ गले में फंस रही है, फंसनी बंद हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि बड़ा बाइट आ गया था, अब छोटा बाइट लूँगा मैं। एंड अनदर थिंग इज़ नियोफोबिया, जो एक चीज़ को अडॉप्ट करना, हमें किसी नई चीज़ को भी। अब जैसे सपोज पहले बड़े लोग धोती और कुर्ता पहनते थे, आज तो हम में से कोई नहीं पहनेगा। बट हाँ, अगर ग्रेजुअली हमें ये पता चल जाए कि किसी कारण हमें पहनना है, तो हम धीरे धीरे उसे पहनेंगे। पहले कुर्ता पहनेंगे, फिर धोती पहनेंगे, फिर दूसरा पहनेगा। एक दूसरे को देख के हमारा ब्रेन एडजस्ट हो जाएगा। बराबर। तो दिस इज नियोफोबिया। तो हब छोटे बड़े सबको नियोफोबिया होता है। बच्चों को जब भी कोई फूड दिया जाए तो मान के चला जाए कि 10 से 15 बार में इसको ये अच्छा लगे। एक और इम्पॉर्टेंट मैं सलाह देता हूँ पेरेंट्स को कि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का समय मेरे लिए किसी भी बच्चे की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट समय। अगर माँ इस बात को समझ जाए, पहली चीज़ उसकी फूड प्रेफरेंसेस नहीं होती, उसे नहीं पता होता आलू क्या है, उसे नहीं पता होता आइसक्रीम क्या है, उसे नहीं पता होता चॉकलेट क्या है। अगर आप उसको जैसा हम बड़े होके खाना चाहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करते हैं, जैसे हम कॉन्स्टिपेशन में कहते हैं कि 5 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की होनी चाहिए, या आधा कप वेजिटेबल आधा कप फ्रूट खाना चाहिए। तो ये आदत सिखाने का टाइम है 6 to 12 मंथ का, जब उसे पता नहीं है टेस्ट वगैरह का।
जब तक उसे ज़्यादा मीठे का पता नहीं, ज़्यादा नमक का पता नहीं है, उसके बाद तो फिर वो थोड़ा ब्रेन वाइज भी डेवलप हो जाता है और फिर उसे पता चल जाता है मुझे आलू अच्छा लगता है, तो वो कॉमन टेस्ट की तरफ जाने लगता है और फिर वो जो हेल्दी फूड है वो उसके पास से फिसलता चला जाता है। मेरे ख्याल से आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि 6 महीने के बाद जो वीनिंग प्रोसेस है वो परफेक्ट करे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि टेस्ट बड डेवलप होता है 8 महीने के बाद। तो उसके पहले अगर आपने जो खिलाना है वो खिलाना चालू किया तो बच्चे को खिलाने खाने की आदत हो जाती है। अच्छा, इस पर से मुझे एक मन में सवाल आया कि अगर कोई बच्चा कॉन्स्टिपेशन लेके माँ लेके आती है तो उसे क्या खाने पीने की एडवाइस देनी चाहिए? ऐसे कोई फ्रूट्स है, या मैंने सुना है कि देयर आर 5 पीज इन कॉन्स्टिपेशन, जैसा कि प्रून्स, पेयर, प्लम्स, समथिंग लाइक दैट which can give more fiber. Is it एक्चुअली true? ना ये सब जो चीज़ें हैं 5 पीज और ये जो थोड़ी फैंसी चीज़ें हैं, आप अगर बच्चा आता है आपके पास, वो कहती है, माँ कहती है क्या खिलाऊं, और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आंसर होता है खिचड़ी खिलाओ, दलिया खिलाओ, तो उसका सेकंड एकदम काउंटर आंसर ये आता है कि ये तो खाता ही नहीं। अब आपने ना यू हैव ओपन अ न्यू पंडोरा बॉक्स, अब इसे कैसे बताओ ये कैसे खाएगा, फिर अगेन ये 10-15 मिनट 20 मिनट्स इस पे डिस्कशन चल रही है। बच्चों को ये तो फिक्स नहीं करा जा सकता कि प्रून लेना है, ये लेना है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ खाना शुरू करते हैं ना, देयर आर मैनी थिंग्स विच आर अकाउंटेड फॉर, लाइक कलर क्या है उस चीज़ का, उसका एरोमा क्या है। अब देखिए कैंपा कोला क्या है या कोको कोला थम्स अप क्या है, पानी के अंदर चीनी घुली हुई है, बट आप पानी के अंदर चीनी थोड़ी पी लोगे, उसका फ्लेवर भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके लिए फ्लेवर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। अच्छा, कंट्री स्पेसिफिक भी है, अगर आप अमेरिका में कैंपा पियोगे तो उसका मिठास ज़्यादा होगी इंडिया की कैंपा से, क्योंकि वो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे ही बच्चे को ना कोई भी चीज़, आप एक नई चीज़ कॉन्स्टिपेशन में आप बोलो प्रून खाना है या लेंटिल्स लेने हैं, गुआवा खाना है, इट इज़ नॉट वेरी इजी। द ओनली थिंग व्हाट आई फील कि उसको बोलते हैं कि दूध कम करके सॉलिड्स बाकी सॉलिड क्या है? जैसे 1 to 5 ईयर्स में मैं बोलता हूँ कि 400 ml से ज़्यादा दूध नहीं देना, बराबर है। मीन्स 2 ग्लास दूध। एक जो हमारी कम्युनिटी है वो ये नहीं समझती, दूध दही मट्ठा दे आर ऑल सेम। इवन पनीर, अगर आपने एक माचिस की डिब्बी के बराबर पनीर खा लिया तो 1 गिलास दूध माइनस हो गया आपका। बराबर। तो ये मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ कि भाई आप दही को अलग मत रख के चलो, दूध दही मट्ठा सब एक बात है, एंड यू रिड्यूस इट टू लेस देन हाफ ए लीटर। उसके बाद इसको खाना दो, या दूध में दलिया डाल के देना शुरू कर दो। दूध एकदम से बंद ना करके, क्योंकि उसको दूध की आदत है, उसका अमाउंट कम करते चले जाओ, देन दे स्टार्ट पिकिंग अप, खाना खाने लगते हैं। देयर आर मेनी मदर्स हु कैन कम एंड आस्क सर हम उसको एप्पल देना चाहिए कि नहीं। कोई बोलता है एप्पल खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, या तो उसका छिलका निकाल के खिलाओ। कोई बोलता है राइप बनाना खाओ, तो कोई बोलता है राइप बनाना खाओ तो जुलाब होता है। तो ये सब चीज़ों पे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं, ये नहीं मानना चाहिए। वो तो ये तासीर वाली बात जो चलती है ना, वो तो ऐसा कोई शुरू से ही पर्टिकुलर फ्रूट्स या पर्टिकुलर खाने के लिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जो मैंने अभी बताया सूजी मैदा से बनी चीज़ें, वाइट फ्लोर वाली, ऑल पर्पस फ्लोर वाली, कम से कम, क्योंकि मेनली तो यही सब चलता है अब आजकल, मैक्रोनी, पास्ता, पिज़्ज़ा, तो वो एक लिमिट में खाना सही है, उसके ऊपर निर्भर रहना गलत है। अब हमारे ज़माने में छोले भटूरे हुआ करते थे मेन, जब हम छोले भटूरे खा लेते तो शाम को खाना खाने का मन नहीं करता था। तो ऐसे ही हमारी टेस्ट बर्ड हैं, और वो खाने में तो चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी हो, तो ये पेरेंट्स को समझना होगा। दूसरा आपने बताया कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है, कि जहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो, और फिर भी फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस, तो उसका कोई होममेड रेमेडीज है कि कोई दवा लेना जरूरी है? मुनक्का का दूध तो हम बहुत दिनों से पीते आए हैं। मुनक्का इज़ अ गुड फाइबर थिंग, एंड पानी थोड़ा बीच बीच में, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो बीच बीच में बच्चे को पानी पिलाने की आदत डालनी चाहिए। खाने का जो पीस है वो लुकमा छोटा छोटा खाना चाहिए, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, आधा घंटा ऊपर नीचे, और रोज़ सुबह सेम टाइम उठना, इवन ऑन वेकेशन। एंड आई थिंक पेरेंट्स शुड लीड बाय एग्जांपल। मतलब चाहे बच्चा दोबारा सो जाए, मैं कहता हूँ उठते ही इसको दूध पिला के या पानी पिला के पॉटी पे बैठाओ, इसको बैठने की आदत डालो। अगर ये बैठेगा तो पॉटी हो जाएगी, आज नहीं होगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, बट हो जाएगी। सो एक प्रकार का एक टॉयलेट ट्रेनिंग यू कैन से। नॉट एग्जैक्टली टॉयलेट ट्रेनिंग, बट द माइंडसेट ऑफ मदर शुड बी, ही शुड गेट अप एंड सिट ऑन द पॉटी। बिकॉज बहुत सारी माएँ, अगर आप कॉन्स्टिपेशन की टोटल हिस्ट्री लोगे तो बहुत सारी माएँ बताएंगी कि ये शाम को जाता है। जो बच्चा शाम को जाएगा उसका तो, उसे तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा,
क्योंकि शाम को आप फंक्शनल हो जाते हो, आपका मन भी नहीं करता कि आप पॉटी कर लूँ, और खेल में लगे होते हो और चीज़ें बहुत करने को हो जाती। सुबह उठ के तो मेन एजेंडा ही है, जैसे अब एडल्ट उठता है तो उसको पता है कि मुझे ये जाना है, टूथब्रश करना है, जाना तो है, एक आदत सी लगानी है। आदत सी लगानी। अच्छा, अभी ये सब तो आप बात हुई डाइट की, लिक्विड की, फिजिकल एक्टिविटी की, या कोई चीज़ों में कैसे उसकी हैबिट डालें। इसके अलावा कोई मेडिकेशन है जो हम यूज़ करना चाहिए और कभी करना चाहिए? मीन्स 2-3 दिन संडास नहीं किया तो कोई दवा देने की ज़रूरत है, कि कितने दिन तक नहीं किया तो कोई दवा देने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि जब तक डॉक्टर पे पहुंचता है तो वो 3 महीने उसके पास हो जाते हैं। अगर फर्स्ट 3 मंथ्स पास हो गए कॉन्स्टिपेशन के, तो कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिनेट हो गया, फिर उसको आपको लंबे समय तक ट्रीट करना होगा। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। तो फिर ऐसे में हमें दवाई ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ती है जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ना हो, मतलब जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ना जाए। तो जैसे मीरालेक्स या पैग है, ये एक ऐसी चीज़ है। अभी एक नया प्रोबायोटिक आया है, वो भी काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। एंड लिक्विड पैराफिन है और लैक्टुलोज है, तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग नीचे से साबुन की गोली चढ़ाते थे, कभी कभी ऑयल चढ़ाते थे, कभी कभी ऐसा कुछ नुस्खा यूज़ करते थे। तो वो एक आध दिन करना तो सही है, बट उससे आपका कुछ अचीवमेंट नहीं होता। ये उससे कोई जो लॉन्ग टर्म गोल है वो उससे अचीव नहीं होगा। आप ये तो थोड़ी चाहेंगे रोज ऐसे ही करके हो, और कुछ दिनों में उसका भी असर खत्म हो जाएगा। क्या होता है जब स्टूल होल्ड रहता है, देखिए एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। स्नोबॉल इज जब बर्फ गोला बन के ऊपर से बर्फ बड़े हुए पहाड़ पे से नीचे उतर रहा होता है, तो बड़ा ही बड़ा होता जाता है, बड़ा ही बड़ा होता जाता है, और जब तक उसे रोका ना जाए तो वो रुकेगा नहीं। ऐसी स्टूल है जो जितना वो बिल्डअप होता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और रेक्टम जो मलाशय है उसका मेन काम है पानी को सोखना, तो वो स्टूल को और हार्ड कर देगा और मुश्किल कर देगा। कई बार देखा होगा आपने कि अगर हम 1 दिन 1.5 दिन स्टूल ना जाए तो स्टूल के जो किनारे हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, एंड इट कॉजेज लॉट ऑफ पेन। और बच्चे को जैसी पेन होता है तो वो रोकता है, होल्डिंग मेथड सीख जाता है, टांगे सीधी करने लगता है, और या बैठे बैठे टांगों से वो स्टूल को ऊपर चढ़ाता है। और दर्द के मारे फिर संडास नहीं करने से हाँ, और पानी कम होता है और मतलब कड़क एक होता है, तो ये vicious विशियस cycle, हाँ, साइकिल हो vicious गई। cycle बन तो ये साइकिल को सर कैसे तोड़ी जाए? खाली दवा से टूटेगी कि और कुछ करना पड़ेगा? दवाई है, लाइफ स्टाइल है, रूटीन बनाना है, क्योंकि हमारी बॉडी एक रूटीन से चलती है, तो रूटीन बनाना है। ऐसा तो है नहीं कि हमें जो रात वाली नींद है वो दिन में आती है, तो एक रूटीन है ना, वो मेंटेन करना है रूटीन। और वो लंबा टाइम वहाँ पड़ा रहा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, कम हो जाती तो है, उसको इवैक्यूएट भी कंटिन्यूस उसको डिसइंफेक्शन कहते हैं हमारी भाषा में। तो कई बार हमें एनीमा भी देना होता है, या जैसे ये जो पैक जिसकी बात करें, जो आजकल पॉलीथिलीन ग्लाइकोल बहुत फेमस दवाई बनी है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा पानी के साथ देना होता है। उसमें लोग मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, या चाहे 2 घंटे में पिलाओ आप उसको ज़्यादा पानी डाल के, तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो उससे डिसइंफेक्शन करते हैं, तो फिर उसके बाद मेंटेनेंस फेज पे आ जाते हैं, फिर कम डोज में काम चल जाता है। तो ट्रैफिक जाम जो हो गया इंटेस्टाइन में, तो ट्रैफिक हटा के तो फिर एक ही पुलिस वाला कंट्रोल कर लेगा। और लंबा टाइम हटा के रखना पड़ेगा, यानी वापस इलास्टिसिटी आ जाए, लंबा समय हटा के रखना। और वो दर्द कम करने के लिए नीचे कोई लिग्नोकेन जेली जैसा अगर लिग्नोकेन जेली थोड़ा पॉइजनिंग करती है, अगर ज़्यादा लग जाए तो इट कैन कॉज कन्वल्जन एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो और ट्यूब्स आती हैं सुक्राल फेट कंटेनिंग, जो कि हम बच्चे को अगर फिशर बन गया है, जैसे तो जो कट बन गया है, तो हम 1 महीने के लिए सुबह शाम को लगवाते हैं। बराबर है। यानी बल्क प्रोड्यूसिंग मेडिसिन या ज़्यादा लिक्विड और कभी कभी ये पेन रिलीविंग एजेंट और लंबा टाइम दवा देने से शायद फ़ायदा हो सकता है। बट व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस? मीन्स कभी पेरेंट्स रियली कंसर्न होना चाहिए इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कि जहाँ पर बच्चे को नुकसान हो सकता है। एक्चुअली पेरेंट्स को कॉन्स्टिपेशन नहीं पता होता, वो या तो आपके पास पेट दर्द के लिए आते हैं, या उल्टी के लिए आते हैं, या और उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं पता होता, क्योंकि बच्चा इनवेरिएबली जा ही रहा होता है, चाहे थोड़ा जा रहा होता है, जा ही रहा होता है। तो वो कॉन्स्टिपेशन तो बहुत मतलब आउट ऑफ 100 पेशेंट 5 या 10% मदर ही कहेंगी कि ऐसे पॉटी नहीं होती है, बराबर। वरना वो किसी और प्रेजेंटेशन के लिए। और उसके अंदर फिर हमको पता चलता है कि ये है। एक्यूट एब्डोमेन से बहुत बच्चे आते हैं, एंड आई हैव सीन 2 ऑपरेशंस आल्सो, दे डिड नॉट टर्न आउट एनीथिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। कई बार माँ आके बोलती है कि मेरा बच्चा स्कूल में आता है तो चड्डी में दाग रहता है, थोड़ा सा संडास किया रहता है, और ये बार बार करता है, जिसकी वजह से बहुत मदर भी इरिटेट हो जाती है और बच्चा भी बेचारा इन्फीरियरिटी फील करता है। तो ये क्या है?
इसको एनकोपैरेसिस कहते हैं, या जो स्टूल ब्लो आउट हो जाता है, जो ओवरलोडिंग की वजह से और म्यूकोसा की इरिटेशन की वजह से वाटर जो है सीप होने लगता है। तो दिस इज आल्सो कॉमन, एंड मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ एनकोपैरेसिस इज क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। और कुछ बच्चे स्पूरियस डायरिया करके प्रेजेंट करते हैं, उन्हें वाटरी डायरिया होने लगता है, स्टूल उनका लोडेड रहता है, जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम माँ बाप को साइकोलॉजी से सामने पेरेंट्स कभी आके बोलते हैं कि बच्चा जब संडास 4-5 दिन नहीं करता है तो ज़्यादा ड्राउजी रहता है, ज़्यादा इरिटेबल रहता है, कोई चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू गट एंड ब्रेन? यस, ऑफ कोर्स। देखिए, जो गट पे जो हमारे जो स्ट्रेसेस हैं, एंजाइटी है, वो हमारे सारे सिस्टम पे असर डालती है। मैं सबको कहता हूँ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, आपकी स्किन चमक जाएगी, आपकी बॉडी अच्छी होने लगेगी। तो जितना हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में अपने ब्रेन को रखते हैं, हमारा ब्रेन 3 तरह से होता है: अनकाइंड माइंड, काइंड माइंड एंड क्वाइट माइंड, शांत माइंड। तो जो अनकाइंड माइंड रहता है और बच्चों का अपने लेवल पे अनकाइंड रहता है, वो बहुत ज़्यादा हमारे जो इंटरनल मिल्यू है उसको बहुत प्रभावित करता है। तो कई बार हमें लूज मोशन होने लगते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो गट ब्रेन का बहुत आपस में रोल है, जैसे हार्ट और लंग्स दोनों एक मिलजुल के काम करते हैं, तो गट ब्रेन भी आपस में लिंक्ड है। अच्छा, अभी जो कई बार पेरेंट्स आते हैं कि सर कुछ रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, हमारा बच्चे में संडास नहीं हो रहा है, तो कुछ तो बाकी, तो व्हेन वी शुड इन्वेस्टिगेट कि खाली काउंसलिंग और प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज वगैरह, स्पेशली फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन 100% हम लोग श्योर है, तो मेरे हिसाब से कोई इन्वेस्टिगेट करने की ये ना इंडिविजुअल वेरिएशन है। अगर मुझे लगता है कि, क्योंकि देखिए सब पेरेंट्स, हम सोचते हैं कि हमें 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, या आपको 40 ईयर हो गए, तो हम जो कह रहे हैं वो मानता है सामने वाला। अब बच्चे कम हो गए, वो इतना नहीं मानता है। तो हमें कहीं कहीं अपनी बात को एजर्ट करने के लिए कभी कभी टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। ऑल्दो देयर इज़ नो नीड, मतलब मेजॉरिटी हमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बट कई बार कराने पड़ते हैं। या कोई हमें रीज़न लगता है, अगर ग्रोथ फेलियर है तो सीलिएक डिसीज़ की सीरोलॉजी में कराता हूँ, ट्रांसग्लूटामिन TGIG। और मेजॉरिटी तो टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। बट अगर लगता है कि पेरेंट्स को ऑलरेडी वो इतनी दवाइयाँ दे चुके, उन्हें दवाइयों के नाम भी याद हैं, तब तो ज़रूर कराना पड़ता है। बिकॉज फिर आप वही दवाई लिखोगे तो वो फर्स्ट शॉट में ही कहते हैं कि तू बहुत पिला चुका। जैसा हम लोग फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन में माँ बाप को बोलते हैं ये खिलाओ, ये ना खिलाओ, या ये कराओ, ये ना कराओ, ऐसा कोई दवा के बारे में बताना है कि कौन सी दवा नहीं देनी है? इन जनरल तो जो दवाई दी जाती है वो ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है, बट हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो आजकल बहुत यूज़ हो रही हैं, जैसे सोडियम पिकोसल्फेट, मैं अपनी प्रैक्टिस में शुरू के 2-3 दिन में दिला देता हूँ, क्योंकि वो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक कर देता है। अगर मुझे लगता है डिसइंफेक्शन है, ऐसे अदरवाइज अचीव नहीं करा जा सकता, तो मैं उनका रूटीन उन्हें बता देता हूँ कि जब भी ये स्टूल पास ना करे तो 3 दिन के लिए सोडियम पिकोसल्फेट दे दो, एंड डोंट गो बियॉन्ड दैट। बाकी मेंटेनेंस आप लैक्टुलोज या इससे पॉलीथिलीन ग्लाइकोल से करें, बट ये पिकोसल्फेट रेगुलर ना दें, क्योंकि इट इज़ नॉट इफेक्टिव एंड इट हार्म्स टू द इंटेस्टाइन ऑल्सो। और डल में ये एक सपोस्ट्री आती हैं बीसाकोडिल की, वो सब मैं नहीं यूज़ करता। ये सब और कई बार बोलते हैं कि आयरन सिरप से कॉन्स्टिपेशन होता है, इज इट ट्रू? आयरन सिरप से होता है कॉन्स्टिपेशन, बट आयरन सिरप तो बहुत ज़रूरी है। ये आयरन की एक ब्यूटी है कि अगर आप हफ्ते में एक बार भी दो तो वो सफिशिएंट है, इनफ है। कि हाँ, वो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो उसको होल्ड कर लेती हैं। अदरवाइज नहीं तो स्टूल काला क्यों आएगा? काला आता है इसलिए कि वो एक्स्ट्रा आयरन निकल जाता है। तो जिन पेरेंट्स को आयरन देने से, जिन बच्चों को आयरन देने से लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होता है, उनसे मैं कहता हूँ थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम कर दो, मगर दो जरूर। स्टॉप करने की जरूरत नहीं, है, बट यू कैन stop. मॉडिफाई Iron हाउ यू stop. गिव। गुड, थैंक यू वेरी मच अनुज जी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और मेरे कई सारे मेरे पेरेंट्स के क्वेश्चन के आपने बहुत अच्छी तरह से आंसर दिए। आई होप इट विल बी यूजफुल टू देम। थैंक यू सर।